I think we're live now. I think we're live now. Okay, okay, We're live. we're live now. Okay. We're Hi live. everyone. Great. Welcome all the audiences here. I hope you're able to hear us, guys. So, Hello. We'll wait for yeah. 5 minutes. Let people come in. It's just two views here. Hmm. Okay. It's going good. Sunday, fun day. Yeah, I'm traveling. Sunday is a fun day, Mhm. and I'm not traveling. Mhm. Good evening. Good evening, Anita. So, give us a couple of minutes so that we can also see more people joining, and then we'll start. Yes, we'll wait for And 5. Yeah, yeah, yes. Thanks, people who are joining. Stay and be there. yeah. Good evening, Anita ji. Okay, guys, I think we have waited a few minutes. Let's Mhm. start in the interest of time. So, Yes, we should hello. start this. Yes, yes. Good evening, everyone. So this is about a live session on celiac and diabetes. I'm Sunil Khandelwal, and I have with me Pinky Kapoor from Mumbai. I'm in Hyderabad now. So we talk about Blue Circle is a patient-led support group and an NGO for diabetics in India. And we have done हमने यहाँ पे 200 से ज़्यादा अब तक इन लास्ट मेनी years ये live sessions किए हैं already on different topics. I'm sure that most of you have already attended them or have gone through the videos for the same. And it is scheduled every Sunday 5 p.m. for your information. हर संडे को 5 बजे same time every week it is there on some or the other topic, and there are different guests who address the same. So today we'll be talking about celiac and diabetes, as I said. So if I talk about myself, I'm Sunil. I'm born and brought up in Calcutta. Then I was in Jaipur for a long time. And then currently I'm in Hyderabad. Diabetic since last
20 years, अभी 14 जुलाई को हो जाएगा, 20 साल पूरे हो जाएंगे 14 जुलाई को, 2 decades. And I'm a celiac from last 10 years now. अभी उसके साथ में थायराइड है, उसको 30 years हो गए. And okay, I'll ask पिंकी. सो गाइज, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स पे को यूटिलाइज करें एंड राइट योर टाइप योर क्वेश्चंस. फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स एंड वट एवर क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड. आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो विल चेक दैट एंड ट्राई टू आंसर देम. एंड तो यस अनिता जी, सो ये इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें इजी रहेगा उसे आंसर करने के लिए. तो हाय I'll hand एवरीवन. over to मैं Pinky. Yeah, हाँ जी, हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ. yes. मैं जैसे सुनील खंडेलवाल जी ने बोला, ये हमारा भी एक इट्स अ सेशन ऑन सीलियाक प्लस टाइप 1 डायबिटीज, जो दोनों ही ऑटोइम्यून डिजीज हैं. मैं एक केयर गिवर हूँ. मेरी डॉटर 18 साल की है. उसको सीलियाक 1 साल से हुआ है एंड टाइप 1 उसको 5 इयर्स हो गए हैं अभी. So we'll talk about what is celiac exactly, how it goes hand in hand with with type 1 diabetes. First of all, सबको मतलब I would like to explain what is celiac. Celiac is actually an autoimmune disease जो नॉर्मली टाइप 1 के साथ कोएग्जिस्ट करती ही है. रिसर्च मतलब जैसे की है, लोग कहते हैं कि टाइप 1 जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसको होती है, they are most likely to develop the celiac disease and vice versa. You know, celiac plus type 1, because they both have the connect of the genetic disorders which happens in the child's body. There are many बच्चे भी हैं जो जिसको celiac भी है और type 1 diabetes भी है. You have an example of सुनील जी जिनको दोनों थायराइड है, थायराइड भी celiac है है, उनको. ये सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो और कोई भी अगर एक celiac होती है तो दूसरे हाँ जी, के चांसेस दूसरे है. को तो हाँ, होती ही है. कभी भी. So any हाँ अनिता जी, ये सीलियक कभी भी हो सकता है. कभी भी हो सकता है, एट एनी एज. यस, एट हाँ, एनी एज. किसी भी एज और ग्रुप में हो इसके सकता है, कभी भी हो सकता है. हाँ जी, और इसके मेनली सिम्टम्स इंटेस्टाइन से ही होते हैं, क्योंकि सीलियाक जो होता है ना, इट इफेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली, यू नो. अगर सीलियक इज बेसिकली आपका ग्लूटेन की एलर्जी होती है. ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन वीट, जो गेहूं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं. उसके अलावा राई गेहूँ, है, बार्ले राई, है. बार्ले, यस, ये हाँ, सब में रहता है. ये कुछ है जिसमें गेहूं हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है. रोटी, चपाती. बाहर जाएंगे तो आपके कुकीज़, बिस्किट, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये एवरीथिंग मेड ऑफ सारी ऐसी. मैदा, रवा, आटा, मैद. आटा, हाँ, ऑल दीज थिंग्स हैव ग्लूटेन इन इट. मैदा, रवा, आटा, these are the main major things which has gluten. यस. और जो सिम्टम्स की बात की जाए सीलियाक की जो होती है, नॉर्मली इट इज लाइक आपको डायरिया हो जाता है, सिवियर डायरिया. यही डायरिया के कारण ही मेरी बेटी को डिटेक्ट हुआ था. उसको सिवियर अच्छा. डायरिया हो गया था, मोर देन 1 वीक द डायरिया कंटिन्यूड. उससे होता है, या फिर अब पेट बहुत दुख रहा है, या वॉमिटिंग एंड नॉशिया विच इज लाइक अनकंट्रोलेबल, तब जाके डॉक्टर्स को डाउट होता है कि लेट्स टेस्ट फॉर सीलियाक. और ये फ्रीक्वेंट हाइपोज से भी हो सकता है, अगर अगर डायबिटिक है तो. हाँ जी, डायबिटिक है तो. हाँ, मेरे केस में क्या हुआ था, सीवियर हाइपोज हुए थे. पहले भी टेस्ट हुआ था व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड. जब मेरा डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, तभी भी ये टेस्ट हुआ था सीलियक के लिए. सीलियाक इसमें टेस्ट नॉर्मली होता जब है टाइप 1 एंटीबायोटिक. डायबिटीज जिसको भी डिटेक्ट होता है, द डॉक्टर्स हैव दैट थिंग के वी नीड टू टेस्ट
celiac also. तो जब दिस मेरी इज द बेटी वन को ऑफ जब द डिटेक्ट चेकलिस्ट है हुआ एक। था ना, हाँ जी, जब मेरी बेटी को डिटेक्ट हुआ था तो तब टेस्ट किया गया था, बट उस टाइम पे डिटेक्शन नहीं थी उसकी सीलियाक की. इट केम लेटर. हाँ सेम ईयर, मेरे साथ या भी ऐसा ही तो हुआ था। मतलब, हाँ जी, 10 साल बाद हुआ फिर। हाँ जी. 10 साल। There is a test, yes, there is a blood test, Snehal. Snehal, there is a blood test for celiac. And then other thing is बायोप्सी की जाती है जिसमें क्लियर पिक्चर आ जाती है. दिनेश, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को सीलिएक होगा तो उसको डायबिटीज़ भी होगा, यस यस, बट दैट्स नॉट ट्रू. चांसेस होते हैं। कोई चांसेस भी हाई ऑटो होती है. इम्यून। हाँ, चंचल जी का क्वेश्चन है, माय डॉटर इज डायबिटिक फॉर पास्ट 12 years and had her endoscopy was negative, but there ओके, is no बट देयर symptom, but her नो. endoscopy was not okay. Said दैट her मस्ट बी बिकॉज iron। ऑफ, हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए. हाँ, नहीं मैं ये समझना चाह रहा था, ये आयरन सम रिपोर्ट कौन सा है? सीरम बोला है उसने, आयरन सीरम रिपोर्ट. दिस इज द आयरन सीरम एनालिसिस रिपोर्ट, ऑफ अच्छा। द आयरन प्रेजेंट इन द बॉडी. हम्म। देखो, यस सीलिएक रोहन। का एक और सिम्टम, एक वन मोर सिम्टम इज माल न्यूट्रिशन भी है एक तरीके से, उसमें भी सीलिएक डिटेक्ट होता है. पर ये जो आयरन का थिंग है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू सीलिएक, आई डोंट थिंक सो. यस, और अगर सिम्टम भी नहीं है चंचल जी, और एंडोस्कोपी टेस्ट भी उसका नॉर्मल है, तो अभी अभी तो सेफ तो है, आई डोंट थिंक, लेकिन हाँ जी, जरूरत नहीं है उसकी टेंशन की. हाँ, लेकिन रेकरिंग चेकअप करा सकते हैं एंड जस्ट यस. थोड़ा सा, हाँ, टू बी जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो चांसेस होते हैं, एंड अगर एनुअल चेकअप करा लेते हैं तो इट्स ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड। Celiac can happen at any age, Rohanji. It can happen at any age. There are children of 3 years old who have celiac. I have my daughter who's बर्थ से भी हो 18. जाता है, हाँ जी, बर्थ से भी होता है. And my daughter was 17 when बिना she got खाए भी हो जाता detected. है। हाँ, सुनील जी हैं एग्जाम्पल, उनको भी celiac है. So it's like at any age. हम्म, मुझे ऑलमोस्ट 30 की एज Yes. में हुआ है सीलिएक, हाँ जी. 21 की एज में हुआ है मुझे डायबिटीज़। तो किसी भी एज में हो सकता है, मैंने देखा है इन बच्चों को, मतलब बहुत यंग एज में, 1 साल 2 साल, और इतना टाइम तो डिटेक्ट होने में हो जाता है, हो सकता है कि उसको बाय बर्थ भी हो, दैट इज हम्म. ऑल्सो पॉसिबल। चंचल जी, आपका जो क्वेश्चन है, शी इज ऑन ग्लूटेन फ्री डाइट अकॉर्डिंग टाइप टू 1। आयरन रिपोर्ट. Does your daughter have type 1? Daughter is diabetic. She just wrote diabetic. हाँ, तो ओके। But it has, as it is it affecting the small intestine? Why the doctor has told her to go gluten free? I don't know. यू आर गोइंग टू हैव नो टाइप। चंचल जी आप कह रहे हैं टाइप 1 डायबिटिक है? यस। और ये किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये? I don't know what she. I know, I think she'll answer. She'll answer. ओके। स्नेहल जी, आपका क्वेश्चन था कि does people who have celiac don't, and not diabetes? Yes, there are many who have celiac only and they are not diabetic. केवल डायबिटीज़ भी हो सकता है, केवल सीलिएक भी हो सकता है, दोनों हाँ साथ में भी जी हो जी, सकता है। दोनों साथ में ऑल हो सकते हैं. पॉसिबिलिटीज आर देयर, और दोनों साथ में अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है। यस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ दोनों डिटेक्ट हो। यस यस. लो हाइपोज, जिसमें आपका इंसुलिन सेक्रेशन जो है वो बॉडी का वो प्रॉपर ना हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, आई मीन बिकॉज ऑफ द इंटॉलरेंस। और हाइपोज हो रहे हैं क्योंकि वो इंसुलिन समय पे लेने के बाद भी हाइपोज जा रहा है, मे बी बिकॉज, या फिर हाइपर हो जा रहा है एकदम से, वो टाइमली यूटिलाइज हो रहा है, इंसुलिन नहीं हो रहा है, ये सब भी एक रीज़न है। तो स्टडीज़ जो है वो अभी भी चल रही है इसके ऊपर, लेकिन ये कुछ कुछ रीज़न है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अ, जो इम्पैक्ट करता है, और ये लॉन्ग टर्म में
ये लॉन्ग टर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको डैमेज कर सकता है। उसके लिए एक टेस्ट हुँ, होता है एंडोस्कोपी बायोप्सी टेस्ट, जिसमें एक हाँ, वो इंटेस्टाइन का विली का सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्ट दैट बायोप्सी की जाती है। हाँ जी। बायोप्सी होता है वो। अनीता जी, आई थिंक टेस्ट आपको लाइक अगर सिम्पटम्स है तो डेफिनेटली करवानी चाहिए, बट वी हैव अ ब्लड टेस्ट बिफोर डूइंग अ बायोप्सी व्हिच गिव्स अ हाँ, क्लियर पिक्चर कि मतलब आपको एंडोस्कोपी करनी चाहिए कि नहीं। तो एक ब्लड टेस्ट आता है, वो डॉक्टर अपने डॉक्टर से आपने ही आप कंसल्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, हाँ, हाँ एडवाइज़र जी, से मिले? एडवाइजर से लेके आप वो टेस्ट ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उसके बाद ऐसे लगता है, और इफ यू हैव एनी सिम्टम्स व्हिच इज रिलेटेड टू सीलियाक, देन डेफिनेटली वी शुड गेट टेस्टेड। एक ब्लड टेस्ट होता है टीटीजी एआईजी, एंटीबॉडी टेस्ट है ये। हाँ, और एंटीबॉडी टेस्ट। जी, और इसमें एक रेंज होती है नॉर्मल की रेंज, उससे अगर ज़्यादा है तो हुँ, चांसेस हैं, दे और फिर हो दे सकता है गो आपके फॉर डॉक्टर बायोप्सी आपको देन। खुद ही प्रेस्क्राइब। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो उसका तो टीटीजी इज़ अबव 300 एवरी टाइम। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? हाँ, ठीक है, अबव 300 एवरी टाइम। अच्छा, एवरी टाइम तो दैट्स आई व्हाट शी इज़ थिंक सेइंग। वो करवाना चाहिए फिर तो। एंडोस्कोपी करवाई है आपको आपने कंसल्ट कर, चंचल जी? तो अगर नहीं करवाई है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट वंस। बट शी इज़ सेइंग शी इज़ डन रिपोर्ट ट्वाइस, वाज दैट्स नेगेटिव। नेगेटिव। या द रिपोर्ट्स वर नेगेटिव। आप मेरे हिसाब से तो आप एनुअल एनुअल चेकअप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये बॉर्डर लाइन हो और कभी भी डेवलप हो सकता है। मेरा भी 3 हाँ या जी, 4 बार के बाद में डायग्नोस हुआ था फाइनली। अर्लियर इट वाज़ ऑल नेगेटिव, फिर जब पॉजिटिव आया ओके। तब से बंद है फिर। हाँ, दीपिका जी, वी हैव द ये क्वेश्चन था ब्रेकफास्ट एक पहले टोमेटिक। स्नेहल जी का, हाउ हाउ डू यू मैनेज सीलियाक व्हेन ईटिंग आउट? स्नेहल जी, इट इज़ अ हाँ, डिफिकल्ट थिंग। बाहर खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। द लास्ट ऑप्शन इज प्रोटीन, विच इज द मोस्ट मैक्सिमम टाइम वही खाया जाता है। लाइक माई डॉटर इज ऑलवेज ऑन प्रोटीन डाइट व्हेन शी इज आउट, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग और समथिंग, और अदरवाइज आई हैव टू कैरी स्टफ फॉर हर, लाइक ग्लूटेन फ्री कैरी ब्रेड। करना, हाँ, वो हमेशा बेटर है, लेकिन बिकॉज आई हैव डन कुछ कपल ऑफ टाइम्स, नेचुरली। हाँ जी, फ्रूट्स हो गए, या फिर प्रोटीन लाइक राइस वी हैव में, फिश, चिकन, eggs, and I've carried couple of times the bread along with me, and I've told the sandwich wala to make a sandwich for her, you know, when she carves for it, you know. So it's difficult to हाँ, eat outside, but manageable लेकिन है। उसको डिमोटिवेट लेकिन उसको डिमोटिवेट मत करिए। बाहर भी हम्म, ऑप्शंस थोड़े कम है, थोड़े लिमिटेड है। थोड़ा हो सकता हाँ, है राइस एंड ऑल खाने से शुगर थोड़ा इंक्रीज होता है, राइस जो से, कि यस, इंसुलिन से मैनेज या, हो सकता है, लेकिन ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है राइस। यस, तो फॉर अ चेंज मॉडरेट क्वांटिटी में राइस, इडली, डोसा, ये सब जो आइटम है, या, ये साउथ खाया जा इंडियंस आर सकता तो है। हाँ। is the best for the gluten हम्म, free people. South Indian food is the best. यस, मेरा भी वही प्रेफरेंस रहता है बाहर जाने से। मैं कैरी हाँ करता हूँ जी। लेकिन बाहर भी खा लेता हूँ। हम्म। दीपिका जी का क्वेश्चन है, ऑन बीइंग अ ग्लूटेन फ्री डाइट आल्सो बोथ माय चिल्ड्रन हु आर celiac very often they अभी मैं जिन complain for जिन 2 stomach बच्चों की some, बात कर रहा था वो दीपिका जी के बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं okay, दोनों, एक बेटा एक बेटी, और उन दोनों को भी ग्लूटेन एलर्जी है। एक को तो डायबिटीज भी है आई थिंक। gluten अगर stomach ache है तो there is somewhere or the other the gluten is going inside the intestine. मतलब जो चीज आप खाते हो that has to be very carefully eaten। जैसे आटा वगैरह जो आप लेते हो, जवारी और मिलेट्स का जो भी आटा लेते हो, you should have see to it that it's not mixed with wheat, मतलब सेम चक्की से ना लो, you know, because normally वो चक्की में भी वो थोड़ा बहुत ग्लूटेन रह जाता है। तो that must be अच्छा, the one of मैंने the reasons। घर पे चक्की ला रखी है, मुझे पहले ही बताया था जब डायग्नोस के टाइम हाँ पे। जी, हाँ, जब that's चक्की really रिमाइंडेड हुई, important। यस, यस, डोमेस्टिक आटा कि चक्की का है। अगर घर पे बना रहे हैं तो आज के टाइम पे आपको ग्लूटेन फ्री लेबल के आटे भी मिल जाते हैं बाहर भी। यस, बट दैट हैज टू बी फ्रॉम अ वेरी गुड शॉप। मतलब नॉर्मल अपनी चक्की वाले से तो हुँ, डेफिनेटली नहीं उठाना चाहिए मिलेट का आटा, बिकॉज दे डेफिनेटली वो मिक्सचर होता ही है।
तो दैट इज वन ऑफ द नॉर्मल वाले रीजंस में कि पूरे चांसेस है। हाँ जी, पूरे चांसेस चांसेस है। हम्म। तो वो जो इससे आपके बच्चों का स्टमक एक, नॉर्मली मेरी बेटी का भी कभी गलती से वो खा लेती है बाहर का, तो उसका स्टमक एक डेफिनेटली होता है। कभी गलती से कुछ खा लिया उसने कि उसमें ग्लूटेन था, तो स्टमक एक डेफिनेटली होता है। तो वो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, इस चीज में तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बाहर से कुछ भी खरीदते टाइम इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम्म। और ग्लूटेन फ्री लेबल्ड हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन या। कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, उसमें लेबल नहीं रहेगा। लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल, आप राइस का खरीदेंगे, दाल का खरीदेंगे, तो उसमें नहीं लिखा रहेगा, लेकिन वो नेचुरली है। तो विच आर सेफ। लेकिन अगर कहीं भी डाउट है, पूरे इंग्रेडिएंट्स को चेक करना ज़रूरी है। कहीं भी थोड़ा वीट का इंडिकेशन है, कुछ और इंडिकेशन है। आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में लेबल होता है, एलर्जिन कंटेंट हम्म। जो है, एलर्जिक कंटेंट के बारे में जिसमें भी वी लिखा रहता है। हाँ, हाँ उसमें लिखा होता है वीट ट्रेसेस ऑफ वीट, कंटेन्स वीट, यस, और इट ट्रेसेस इज ऑफ वीट। प्रोसेस्ड समवेयर वेयर वीट इज प्रोसेस्ड। हाँ। तो चांस उसमें भी होते हैं, तो ट्राई करना चाहिए कि उसको भी हम अवॉइड ही करें। हम्म। दैट इज मस्ट बाहर बी द से वन ऑफ द रीजंस ब्रांड। की जो उनका पेट दुखता है बच्चों का, जहाँ पे हम लोग को लगता है स्नेहल। ग्लूटेन फ्री है बट वो होता नहीं है। हाँ, ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं स्नेहल जी मार्केट में। अभी मैं अगर आटा आटा की बात करूँ तो मैं अलग अलग ब्रांड्स यूज़ किया है। एक जीवा है जो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, वो टेस्ट भी अच्छा है, ग्लूटेन फ्री भी है। ऑनलाइन अवेलेबल है, डायरेक्ट फ्रॉम साइट अमेजन, शायद फ्लिपकार्ट, जियो, कई अमेजोन, जगह मिल यस। जाता है। हाँ, वे फ्री ऑल्सो हैज इट। एक एक वे फ्री है, आशीर्वाद का भी आ रहा है। तो हम्म। जो भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो अलग अलग एक एक बार ट्राई करके जो टेस्ट जिसका ज़्यादा अच्छा लगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर फॉर चेंज भी अलग अलग ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी भी कभी कभी सबकी नहीं होती है, तो वी शुड बी हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस इन हैंड, कि अलग अलग पता होना हम्म। चाहिए हमें ताकि ऑल्टरनेटिव भी ले सकें। बाकी ये हुआ आटा। इसके अलावा काफ़ी सारे वे फ्री के जैसे प्रोडक्ट्स और भी आते हैं। कुकीज़ भी हैं, और भी काफ़ी कंपनीज है। ग्लूटेन फ्री सर्च करने से ऑनलाइन तो मिल ही जाता है। और यस, यस, देयर आर अलग अलग मेनी। रीजन, अलग अलग सिटीज़ है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कुछ कहीं पे नहीं मिलते हैं। कुछ बेकरी लोकल स्टोर्स भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ग्लूटेन फ्री वो लोग खुद बनाते हैं। अगर हम्म। इफ़ यू ट्रस्ट देम तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। We have missed one point of blue, Snehal अपना नुपुर जी का ही कि TT is TTG high enough to diagnose celiac? Yes, उनका 300 is quite high, जिसमें बिकॉज मेरी डॉटर का जब डिटेक्ट किया गया था इट वाज 216, तो तभी मेरे डॉक्टर ने बोल ही दिया दैट शी हैज सीलियक। तो आई डोंट नो उनका नेगेटिव क्यों आ रहा है। ये बड़ा डाउटफुल लग रहा है, मतलब वो रिपोर्ट को आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, आई थिंक। हाँ जी, जरूर करना चाहिए उनको। और जो यस सर, दीपिका जी मेट्रिक आप है वो साइक्लोपा, मेट्रिक भी चेक करना होगा। हाँ जी, दीपिका जी साइक्लोपम इज द बेस्ट सिरप फॉर दिस पेन फॉर सीलियक। वही एक मेडिसिन है फॉर स्टमक एक फॉर सीलियक पीपल। जब भी होता है मैं भी साइक्लोपम टैबलेट ही देती हूँ मेरी डॉटर को। दिनेश जी का क्वेश्चन है, नाउ समटाइम नाउ आई एम ईटिंग ग्लूटेन सो इट इज नॉट तो शोइंग इट एनी नॉट शोइंग सिम्टम। एनी सिम्टम। समटाइम्स यू आर ईटिंग ग्लूटेन इट इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम, लेकिन अगर वो एक बार डायग्नोज हो गया है ना हाँ। दिनेश जी, तो मतलब इट इज हार्मफुल फॉर अस वंस इट यस, इज वो कभी डायग्नोस्ड। भी वो कवर अप हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ जाता है इट एंड देन डैमेज इट, करेगा। वो हाँ, डैमेज हो जाता है ना तब हिट करेगा आपको। फिर वो फिर वो सिवियरली इफेक्ट करेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को। इज वेरी what डेंजरस I टू have ईट known ग्लूटेन। what I have known so far is there is no treatment, no कुछ इसका अभी तक नो मेडिसिन एज सच। एक ही उपाय है, टू अवॉइड ग्लूटेन। और हो सकता है यस, अगर मैं ग्लूटेन गलती फ्री से डाइट। ग्लूटेन खा लूँ तो मेरे को इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नहीं आता है। इन लॉन्ग टर्म इट कैन डैमेज द इंटेस्टाइन।
और उसकी सीवियरिटी इतनी हाई है कि वो इंटेस्टिनल कैंसर में भी डेवलप हो सकता है बाय द Yes, टाइम। I was about to say that, but it is very dangerous to once you have detected. So I would definitely suggest कि आप gluten free diet पे ही रहिए, because in हाँ, future it may damage your intestine. So you have to be very careful in that. ये शुगर की तरह है, कभी-कभी हमारा नॉर्मल चल रहा होता है, हम इंसुलिन ना लगाएँ, हाँ, तो वही भी वही। हमारा लेवल ठीक रहता है, लेकिन वो दैट्स वन ऑड डे। इसका मतलब हमें दूसरी बार तो इंसुलिन लगाना पड़ेगा, वरना वो हाई चला जाएगा। हम्म। ये चंचल जी का क्वेश्चन फिर से आया। आई नो हर रिपोर्ट्स आर डेफिनेटली फॉर अ ग्लूटेन फ्री, मतलब फॉर अ सीलियाक डिजीज, जो भी उनका लेवल आया है 300। नेहल जी सही कह रहे हैं, यू शुड गो फॉर अ सेकंड और थर्ड ओपिनियन संजल जी, बिकॉज वो जो उसकी रिपोर्ट्स है 300 इज क्वाइट हाई। मेरी यस, डॉटर का 216 पे ही 300 हाई डाइट है। काफी हाई है। हुँ, देन देयर बी सम 300 अदर हाई थिंग। है। हाँ जी, वो जो कुछ तो चंचल है, जी बोल रहे आई हैं। थिंक एक किसी और को भी कंसल्ट करना चाहिए। यस, यस नुपुर जी, you're definitely right. अगर आपके पास टाइप 1 डायबिटीज एंड इफ यू गो completely gluten free diet, it definitely helps you to control your diabetes. मेरी डॉटर को काफ़ी काफी लोग फर्क पड़ा है। काफ़ी लोग बाय काफी लोग, चॉइस मेरी बेटी को काफी ग्लूटेन फ्री फर्क पड़ डाइट पे गया है। है। हाँ जी, बट माई डॉटर बीइंग लाइक शी हैज टू गो ऑन, शी इज ऑन ग्लूटेन फ्री, उसकी डायबिटीज काफी कंट्रोल हो गई है, बिकॉज शी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ हाइपोस व्हेन शी हैड द कार्ब्स का डाइट। अभी कार्ब्स पूरे खत्म हो चुके हैं, so she's quite controllable. And yeah, by choice people are like देन switching to this. नुपुर जी तो सॉलिड डाइट पे हैं। लो कार्ब, ग्लूटेन, एवरीथिंग, लीजेंड। Yeah, चॉइसेस है, देखिए अलग-अलग लोगों की अलग-अलग चॉइसेस है, प्रेफ़रेंसेस है, कंट्रोल सिस्टम है, एज ग्रुप है, तो yes, एक्स्ट्रा में तो हम जो भी करें अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो मैंडेट है वो फ़ॉलो कर ही लेना चाहिए। yes. I didn't understand this. दीपिका जी क्या बोल रहे हैं? Following gluten-free diet, my little one who is also living with type 1 to daily use type 1 diabetes maybe usually uses the washroom for total almost 5-6 times. Following a gluten-free diet, uh, एक एक लैक्टोज का भी टेस्ट करा सकते हैं। अभी मैं ये Hmm. टॉपिक से ऐड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने भी ये थोड़ा फेस किया था बीच में एंड आई स्टॉप लैक्टोज Okay. आफ्टर कंसल्टिंग माय डॉक्टर। तो Mm-hmm. लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है। उसका साथ कोई में। टेस्ट नहीं है। हाँ, उसका कोई टेस्ट नहीं है लैक्टोज के लिए। बेसिकली अगर हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मे बी फ्रीक्वेंट डायरिया एंड ऑल दोज थिंग्स, लूज मोशंस है, अगर इवन आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रॉपर डाइट अगर उसके बाद भी कुछ है, तो पॉसिबिलिटीज़ है लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की। तो आप लैक्टोज को पहले रोक बंद करके देखिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर उसके बाद ठीक हो जाता है, स्लोली वापस से इंट्रोड्यूस करके भी देख सकते हैं। अगर वो ठीक रहता है, तो मॉडरेशन में लैक्टोज़ को कंज़्यूम कर सकते हैं तब भी। लेकिन अगर लगता है कि नहीं इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस केस में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी बॉडी फेस कर रहा है। लैक्टोज़ फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये सम क्रॉस या रिलेशन अश्लेषा जी, रिलेशन है, दोनों ऑटो इम्यून है। सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लाइक थायराइड है, डायबिटीज़ है और ये सीलिएक है, ये सारे ऑटो इम्यून है। सो कि कोई भी एक होने से दूसरे के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दे हैव द जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, दोनों में सेम रहते हैं, श्योर दीपिका जी। तो दे हैव द। गुरदीप जी, हाँ, बकवीट इज ग्लूटेन फ्री, बकवीट इज कुट्टू का आटा, और वो अच्छा भी है, यस। और वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो उसका हलवा खाता हूँ, चॉकलेट का हलवा समझ के। टेस्ट भी अच्छा आता है उसका। डॉक्टर्स हैव अ कंफ्यूजन about what just negative endoscopy child CTG is high, there is celiac, that's it, or are we missing Or something? we missing something? चंचल जी, आपका क्वेश्चन और आपके जो आंसर्स है साथ साथ ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, क्योंकि रीडिंग्स कुछ और हाँ, बोल रही एक्चुअली है, आई थिंक और she should go for चेंज she should चेंज go का for आपको other डॉक्टर और एंडोस्कोप, यस यस, सेकंड थर्ड ओपिनियन पे जाना चाहिए, एंड सम गुड जाना वन, ही वो चाहिए, जो थोड़े रिनाउंड हो। because TTG is high, मतलब she is gluten intolerance, so she should यस definitely यस, go on gluten free diet, उसको जाना ही चाहिए। टीटीजी हाई है और सिम्टम्स भी है, राइट? तो यस। तो फिर नेगेटिव होना, मतलब बड़ा डिफिकल्ट है ये। नेगेटिव हो बहुत अच्छी बात है। एंडोस्कोपी नेसेसरी टू डायग्नोस आई थिंक सीलियक, डॉक्टर्स विल बी नेसेसरी, बेटर। हाँ, नेसेसरी है कि नहीं, वो यस यस डॉक्टर्स रिपोर्ट्स देख यस। के बता देंगे, एंटीबॉडी हाँ, टेस्ट की डॉक्टर्स रिपोर्ट देख देख के। के डॉक्टर बता देंगे, वो खुद ही रिकमेंड करेंगे। हाँ जी, वो एक्चुअली उसमें वो जो लेवल है वो दिखाया जाता है, किस हाँ, लेवल तक इंटेस्टाइन इफेक्ट हुआ है। एंडोस्कोपी एग्जैक्टली। शोज दैट कि किस लेवल पे वो इंटेस्टाइन डिटेक्ट हो, मतलब इफेक्ट हो रहा है, कि हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मेरी डॉटर को जब डिटेक्ट हुआ था, तो ये सेट कि 2-3 महीने लगेंगे उसको लेवल में आने के लिए, टिल यू फॉलो द ग्लूटेन फ्री डाइट। एंडोस्कोपी टेस्ट में एक पाइप आपके गले के थ्रू जाएगा, कैमरा के साथ में, एंड दे विल स्कैन एवरीथिंग इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, दे विल स्मॉल आल्सो इंटेस्टाइन। टेक, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ में वो एक विली का एक सैंपल बायोप्सी लेंगे भी। हाँ जी। बायोप्सी के लिए, वो टेस्ट हम्म करके बताएंगे। सो ये एक्चुअली हम्म प्रोसीजर है टू हम्म। फाइंड आउट द लेवल ऑफ डैमेज, और उसमें, और ताकि वो जो डैमेज हुआ है वो और ना बढ़े, उसके और लिए ना बढ़े, ग्लूटेन फ्री yes। डाइट, हाँ, उसके लिए ग्लूटेन फ्री डाइट इज द ओनली ऑप्शन। वो डैमेज जो ऑब्वियसली। है वो ग्लूटेन ही करता है। एंडोस्कोपी इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, यस। बट आपको नॉट एट बेहोश ऑल, कर देते तो सबसे पता नहीं गंदा। चलता है। पर बेहोश मैं कर तो देते हमेशा तो आपको जिंदा, नहीं समझ आता है। मुझे तो हर बार होश में रख के किया है, बाप रे बाप। ओ नहीं, मेरी डॉटर को तो मैंने अनकॉन्शियस करवा के ही करवाया था। यू हैव टू बी, बिकॉज वो डर जाती थी फिर। वन पाइप देख के डर गया था, मैं तो रिपोर्ट का नाम सुन के डर जाता हूँ कि ये टेस्ट होने वाला है फिर से, क्योंकि जब पहला एक्सपीरियंस था ना, वो तो जैसे हम्म जैसे कर लिया, और वो होने के हम्म। बाद में आँख से आंसू, शरीर से पसीने, सब कुछ निकले। अब ये डराने की बात नहीं है, लेकिन ये है, यही है बस। यस यस, दैट इज द प्रोसीजर, यू कांट डिनाई। जो प्रोसीजर वो है वो है। प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये बार बार नहीं होता है। एक बार हो गया हाँ, तो जस्ट वंस, अब यस। फॉर इयर्स इट विल नॉट हैपन। बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रीटेस्ट हो सकता है, री एग्जामाइन हो सकता है, लेकिन ये बार बार हाँ, नहीं मेरे करना पड़ता, डॉक्टर्स एक बार डायग्नोज होने नॉर्मली, का मतलब। हाँ, हाँ, उसके बाद वापस करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर ने, जैसे मेरी डॉटर को बोला जब गया तक है कि नेगेटिव हो, हाँ जब जी, तक जब तक नेगेटिव नहीं। हो तब तक बार बार होने के चांसेस ज़्यादा है। एक हाँ बार जी। पॉजिटिव हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हो नहीं सकता है थोड़े टाइम के नहीं, बाद में जस्ट टू बोले। कीप एंड चेक, एक चेक, चेक रखने के लिए राइट। डॉक्टर ने बोला है करने के लिए। मुझे 10 साल हो गए डायग्नोज हुए, अभी फिर से कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो भी लास्ट ईयर फिर करवाया था 23 में। एनी अदर क्वेश्चंस कमिंग अप, और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आना भूल गया है तो आई सजेस्ट द पार्टिसिपेंट्स कि आप फिर से टाइप कर दें, ताकि वो हमें फ्रेश नया फिर से क्वेश्चन टाइप दिख कर जाएगा। दीजिए। आई जस्ट गो थ्रू ट्राइंग इफ टू आई आंसर कैन। ऑल। हाँ, लेकिन अगर कुछ छूट गया है तो आप रीटाइप कर दीजिए, ताकि हम हम्म। न्यू क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से।
अच्छा, अगर टेस्ट कराने जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। हालाँकि टेस्ट कराने जाएँगे तो डॉक्टर्स भी आपको बता देंगे। उस समय ग्लूटेन कंज़्यूम करना ज़रूरी है। अगर हम टेस्ट बिना कंज़्यूम किए कराएँगे तो हमें नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे सकते हैं और फ़ॉल्स रिज़ल्ट दे सकते हैं Okay. बेसिकली। तो हाँ, ब्राउन राइस इज़ फाइन, एग्ज़ैक्टली एकदम बहुत बढ़िया आइटम है ये। आपके शुगर के लिए भी अच्छा है और आपके ग्लूटेन एलर्जी के लिए भी अच्छा है ब्राउन राइस। टेस्ट एवरी ईयर हाँ, क्या जरूरी है? की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर सिम्पटम्स हैं तो ऑफ कोर्स करा लेना चाहिए। Hmm. Ashleisha Jadhav, the symptoms are like severe diarrhea, stomach pain, nausea, vomiting, which is like on a severe level. Matlab, this is not normal, which it continues for more than 3 to 4 days. Then, and if your the daughter is or the child is having a type 1 diabetes, so definitely you should go and test for celiac. और कुछ ऐड करना है आपको सुनील जी एज अ सिम्टम? अश्लेषा जी एक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन है. डिड यू बोथ हैव टू डू एंडोस्कोपी टू? यस, Yes, yes, एंडोस्कोपी we have करवाया था। done. Not me, my daughter had done. इनकी मैंने डॉटर ने उसको कराया था करवाया था. और मैंने तो खुद ने कराया है। हाँ. 3 या 4 बार करा चुका अब हम्म. तक। अच्छा नहीं है, लेकिन कराना पड़ता है। सिम्टम्स के लिए आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है अश्लेषा जी के लिए, सुनील जी? नहीं, आई थिंक आपने बता दिया। मेन तो यही होता है, एक सीवियर हाइपोज़ भी हो सकता है, दैट आई कैन ऐड। हाँ, अगर अगर सिवियर हाइपोज डायबिटीज़ भी ऑल्सो. है तो सीवियर हाइपोज़ अगर हो रहे हैं तो वो एक और पॉइंट है ऐड करने के लिए। बिना एंडोस्कोपी के डायग्नोसिस अनकॉमन है. सो वाज़ कन्फर्मिंग। uh, बिना look, एंडोस्कोपी के डायग्नोसिस। देखो ब्लड टेस्ट से भी पता चल ही जाता है दैट यू हैव celiac. Endoscopy is just to test the level which द has done लेवल, to the level डैमेज which has लेवल done चेक to करने the के लिए। damage level in the intestine. तो एंडोस्कोपी उसके लिए ही की जाती है. अगर वो टेस्ट में टीटीजी इज हाई, मतलब यू आर सीलियाक. एंटीबॉडी टेस्ट बता देता है कि है सीलिएक, किस लेवल पे कहाँ तक पहुँचा है, कुछ हद तक वो भी बता देता है क्योंकि उसमें हाँ. कितना लेवल आया है। हाँ. लेकिन फिर भी हम्म. एंडोस्कोपी इज़ अ मोर एक्यूरेट मेथड, क्योंकि वो लाइव चेक करते हैं डॉक्टर्स हम्म. आपके स्कैनिंग के थ्रू, कैमरा पाइप एंडोस्कोपी जो पूरा टेस्ट रहता है, बायोप्सी टेस्ट, तो उससे पता चलता है किस लेवल का है। लेकिन बट Yes. ईदर वेज द ओनली ऑप्शन इज टू अवॉइड नहीं, एक्सक्लूड gluten, Yeah, to gluten exclude strict diet, gluten gluten free. entirely. Strict gluten Yes, free they diet is the only remedy for celiac or gluten only allergy people. medicine you can say. Yeah, it has no Yeah, other no medicine, medicine. That's the only the only thing. diet, lifestyle change। Yes, बार्ले है, राई है, food lifestyle वीट change. के अलावा, अभी जो हमने बताया था। हाँ, तो वीट के अलावा वीट Millets, सबसे मेजर millets तो कंट्रीब्यूट आजकल. करता है। मल्टी मिलेट्स, मल्टी मिलेट के हाँ, apart आइटम भी from अगर हम wheat, कभी it's like बाजार से लेते हैं ना, तो बार्ले एंड राई wheat के अलावा ये है that is दो मैदा. मेन। मैदा has it, rava has it. All वो वीट bakery का ही हो items गया। basically. वीट, Yeah. हाँ, वो वीट का ही हो Yeah, गया। apart from wheat, वीट एंड वीट what other प्रोडक्ट्स। things are? Yeah, wheat and wheat हाँ, products. Barley हो गया and सूजी, सूजी, rye. हाँ, Suji. राई। Suji is like a part of, सू, yeah. सूजी में 2 तरीके की सूजी आती है, एक राइस सूजी, एक व्हीट सूजी। व्हीट सूजी Hmm. इज़ हैविंग ग्लूटेन, एंड राइस सूजी Has में ग्लूटेन नहीं होता है, दैट इज़ सेफ। uh, अगर हम घर में यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ राइस सूजी। बाहर अगर हम जाते हैं hmm. तो वी शुड ऑलवेज आस्क कि कौन-सा सूजी से बनाया है। अगर अगर हम बाहर Yes. जाके कुछ खा रहे हैं बाहर से, तो हमें पूछना ज़रूरी है, किसी भी काउंटर से शेमलेसली आस्क देम क्या-क्या चीज़ से बनाया है, कहीं भी डाउट हो तो। Hmm. Yes, yes. एनी फास्ट फूड सेंटर, कॉर्नर, इधर-उधर किसी भी रेस्टोरेंट हो, बड़े से बड़ा हो, छोटा हो, एकदम बेझिझक उनसे पूछ लेना है। वो ना बता पाएँ, उनके मैनेजर से पूछो, कोई ना बता पाए तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड ही कर दो। Yes. And I would like to add one more thing. There is no medicine for it, so don't go ever go for homeopathic.
also for gluten free diet. हाँ, लोग बोलते हैं कि इससे ठीक हो जाता है, सीलियाक कुछ ठीक नहीं होता है। कोई इट साइंटिफिक इज एविडेंस है नहीं उसका एक्चुअली। कुछ हाँ, लोग बोलते हैं लेकिन कोई देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू इट सो फार। या क्योंकि इट्स एन बाय ऑटो इम्यून मिस्टेक थिंग। ईट, बाय मिस्टेक करने का मिस्टेक तो करना नहीं है रोहन, लेकिन अगर बाय मिस्टेक ईट कर लेते हैं तो अगेन सेम थिंग, बस उसको आप रोक पेट दो। दुखता है, वो मिस्टेक हो गया सो स्टमक हो पेन गया। होता है। हाँ, वो जो होगा वो फेस करना है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। उसमें व्हाट कुछ नहीं कर। हैपेंस, हाँ, स्टमक डायरिया हो पेन सकता होता है, है, स्टमक एक हो सकता है। इट ट्रिगर्स डाइट इज द बैक। ओनली मेडिसिन है। डाइट इज द हाँ, ओनली मेडिसिन, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, यस यस, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। डाइट इज द ओनली मेडिसिन। बाय द वे रोहन, आई एम सुनील खंडेलवाल। हाँ, आई वाज जस्ट रीडिंग द सरनेम। कोई बात नहीं। His diet is the only medicine. There is no other options. एब्सोल्युटली। Let's see if we can miss points which we want to share. Anything else, Sunil ji? आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट दोस पॉइंट्स कुछ। अच्छा, मार्केट, दीपिका जी ने बड़ा लंबा क्वेश्चन लिखा है। माय सन होल्ड टीटीजी इज नेगेटिव ऑल द टाइम, शोज मोर। अगर नेगेटिव ऑल द टाइम है तो इसका मतलब है कि वो राइट डाइट फॉलो कर रहा है। सेकेंड Hmm. इज मोर सिम्टम्स, shows more symptoms and immediate response to the gluten contamination. Okay, frequent hypos for almost a week. Actually, I have started on gluten-free for him also. One seeker diagnosed with T1D. That's why it's typically showing negative. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स है वो इसके इसका सही जवाब दे पाएंगे। My लेकिन देयर आर son, पॉसिबिलिटीज। हाँ, symptoms and immediate आप response to देखिए। gluten accompanied with frequent hypos. I think हाँ, ये तो आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे exactly what's the problem. और यू के या फिर उन्होंने एंडोस्कोपी कराई है कि नहीं कराई है, दैट्स द पॉइंट। Outside potato chips are also having wheat extract, so should we avoid that? अगर लिखा है यस, ऐसा wheat extract है तो फिर of completely course no, completely no, avoid। please don't eat anything from outside. from from was अच्छा, भुवन ने बड़ा ग्रीक और रिसर्च करके कुछ लिख दिया है एब्डोमिनल कंडीशन दैट फर्स्ट। जी बिल्कुल रोहन, सही जवाब। Perfect. वीट, दिनेश जी, वीट अगर किसी में भी है तो ऑफ कोर्स हमें अवॉइड ही करना चाहिए। होम मेड आर ऑलवेज सेफ बिकॉज हमें पता है कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर में थोड़ा भी डाउट है तो गो फॉर ऑल्टरनेटिव। कोई एक प्रोडक्ट में डाउट है तो उस पर स्टिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। Hmm. व्हेन वी हैव Outside चॉइसेस। हाँ, outside food में like I would like to say कि there are chips, अगर craving हो रही है, खाना है, तो there are many brands which which has written gluten free on it. Like Cornitos है, Nachos वगैरह है, they are gluten free. Potato हाँ, chips they तो have gluten. वो लोग का जो चांसेस रहते हैं मतलब उसमें, जिस चांसेस रहते हैं प्रोसेसिंग। उसमें, प्रोसेसिंग टाइम पे आ जाता है उसके अंदर। दीपिका जी, आपके क्वेश्चन के बारे में वापस से सोच रहा था। आप अपने एक्सपर्ट से तो मिल लो, लेकिन हो सकता है जो हाइपोज है वो इंसुलिन ज़्यादा और मतलब डायबिटीज़ मिसमैनेजमेंट के कारण भी हो सकता है। ग्लूटेन ग्लूटेन फ्री तो अच्छा है कि आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपर, लेकिन हो सकता है कि इंसुलिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर लीन इनटेक है वो नहीं हो पाया है। तो आप एक बट उनको इंसुलिन का सिम्टम्स डोज को मतलब रिड्यूस कर। आई वुड लाइक टू नो द सिम्टम्स। दीपिका जी, आपके बेटे को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं मतलब ग्लूटेन खाने से?
बिकॉज जरूरी नहीं है कि नहीं वो सिम्टम्स जो है इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सीलियाक, यू नो। Endoscopy is इट शुड not done, she is saying, only because you could have the contaminated food also. How could I keep on giving him gluten for a month? How could I keep on giving him? Hmm. हाँ पिंकी जी, आप कुछ बता रहे थे दीपिका जी को। हाँ वही मैं बोल रही थी कि आई थिंक क्या सिम्टम्स, आई वुड लाइक टू नो दैट दीपिका जी। बिकॉज वो उन्होंने लिखा है कि सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम्स आ, देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो व्हिच कोई दूसरा इशू भी हो सकता है उसको, एग्जैक्टली। जरूरी नहीं कि सीलियाक ही है उनको। Does type 1 should consider test for celiac? Deepak ji, normally when type 1 is detected, the doctors do test for celiac on the Stomach ache, same time. hypos, it is more vomits also. तो आपको celiac है नहीं है, that's the first test, is the first list of tests done जब आपकी टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट की जाती है, तो उसी टाइम पे टेस्ट किया जाता है आपको सीलियाक है कि नहीं है। स्टमक एक, हाइपोज, ये सब सिम्टम्स तो है। एंड इफ मोर ग्लूटेन इनटेक इज मोर, इनटेक इज मोर, मतलब वॉमिट्स ग्लूटेन आल्सो। फ्री डाइट पे है ना, तो फिर ये ग्लूटेन इनटेक मोर कैसे हो रहा है? उनका कहना इसका मतलब है वो, कि वो उसको हाँ, ग्लूटेन डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है, पर जब वो ग्लूटेन खाता है तब उसको ये सब होता है। ओके, सो वॉलंटरीली अवॉइडिंग इट। हाँ, तो उसका पर वो नेगेटिव ही आया है टीटीजी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुझे याद है जब लास्ट में जब उनसे मिला था तो यही सुना था कि ग्लूटेन फ्री डाइट पे है दोनों, और दोनों को शायद डायग्नोस्ड है। मे बी नहीं, दोनों उनका फॉलो कर रहे डायग्नोस हैं बट हुआ नहीं है। डायग्नोस्ड नहीं है। हम्म। अच्छा, तो दीपिका जी आप यही कहना चाह रहे हो कि उसको डायग्नोस नहीं हुआ है? देयर मस्ट बी सम अदर इशू, ही डेफिनेटली नॉट सीलियाक, अगर उनका टेस्ट में नहीं आ रहा है तो। हाँ, टेस्ट करने के पहले हमें ग्लूटेन खाना पड़ेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिपोर्ट आ जाएगा, मैनिपुलेटेड हो जाएगा वो रिपोर्ट। यस। जो जनरली लोग कभी कभी डायबिटीज ये अपना ग्लूकोज टेस्टिंग के टाइम पे भी कर लेते हैं, पहले करते थे, अब तो नहीं करते होंगे, कि ठीक है आज सुबह टेस्ट करने के लिए आ रहा है, आज मत खाओ, टाइम पे इंसुलिन लो, ये सब फॉलो कर लो ताकि रिपोर्ट सही आए। वो रिपोर्ट सही नहीं आती, वो हम अपने आप को चीट करते हैं। हम्म। बोथ आर डायग्नोस्ड विद द सेम, सो दीपिका जी सेइंग दैट दोनों को डायग्नोस्ड है ऑलरेडी। ओके, दे हाँ, हैव। मुझे भी ऐसा ही याद था। हाँ, ओके। तो फिर तो ग्लूटेन इंटेक होना नहीं चाहिए ना। होना ही नहीं चाहिए, अगर डेफिनेटली आपको मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक से हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसका तो कोई यस। ऑप्शन नहीं है, वो सिम्टम्स आएंगे, लेकिन फिर वो वापस रोक देना है अगर गलती से हो गया है तो। लेकिन हम्म। ग्लूटेन को ट्राई भी नहीं करना है कि रिपोर्ट हम्म। नेगेटिव है तो ग्लूटेन ट्राई करें, एक बार डायग्नोज हो गया तो हो गया। हो गया, यू डोंट नीड टू डिटेक्ट टेस्ट इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो एक बार हो जाता हाँ, है तो वो, और फिर वो क्या होता है, दैट्स व्हाट, वो ग्लूटेन खा के नहीं गए होंगे इसलिए वो नेगेटिव आया होगा। अगर एंडोस्कोपी करा लो मेरे हिसाब से तो, आई नो थोड़ा सा पेनफुल होगा ये टेस्ट, लेकिन डॉक्टर भी अगर पर एडवाइस कर नॉर्मली रहे हैं दीपिका किड्स जी को तो तो आप करवा नॉर्मली वो लो। लोग बेहोश ही करते हैं करवाने के लिए। दे विल यूज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू इट, ताकि लीस्ट पेन हो उनको, या जो भी है, आई मीन दे आर द बेस्ट हम्म। पीपल, डॉक्टर्स आर द बेस्ट पीपल टू सजेस्ट दैट। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो करा लेना चाहिए। अननोइंगली इन द आउटसाइड फूड दिस हैपेंड। हाँ, हो सकता है ऐसा, आउटसाइड फूड। यस तो यस, इस आउटसाइड वजह फूड। से सिम्टम्स हो जाता है। इसमें हम उतना ज़्यादा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मिस्टेक से मिस्टेक हो ही जाती है। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि अब बात फिर से ना खाएं, और जो हम्म। सिम्टम्स है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करें फिर।
Have to Okay, continue as a person who is celiac and क्या क्वेश्चन है? Yes, just try definitely. to continue. हम हमारे पास केवल 10 मिनट और रह गए हैं। हाँ, that's what I was saying. Only 10 more कोई minutes to go. किसी के पास कोई Questions तो वैसे यूनिक क्वेश्चन है तो ज़रूर पोस्ट करें। कोई यूनिक क्वेश्चन हाँ, जो अभी अब तक हमने सुना नहीं, बताया नहीं, किसी के माइंड में कुछ है तो ज़रूर पोस्ट करें। लेकिन जस्ट टू सम अप, अगर सीलिएक है तो ग्लूटेन नहीं खाना है इन एनी सीन। गलती से खा लें तो भी बस उसका जो भी रेपरकशन है वो आएँगे। अगर आ रहे हैं, मतलब वो भी डिपेंड करता है कि कितना खाया है। तो भी एक ही चॉइस है कि फिर अब ग्लूटेन और ना खाएँ। और टेस्ट अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो कराना चाहिए। एंडोस्कोपी है, टीटीके, जिसको ग्लूटेन ये सीलिएक एलर्जी नहीं है, ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, तो उसके लिए भी इट इज़ इम्पोर्टेंट। और डायबिटीज़ है, राइट, कि टाइम टू टाइम अपने आप को एग्जामाइन करें। और इफ़ रिक्वायर्ड एक ब्लड टेस्ट एटलीस्ट हो जाए। एंडोस्कोपी कैन बी ए सेकेंडरी थिंग, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट हो जाए विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर, तो दैट इज़ अ रिकमेंडेशन। एंड yes. बाई चॉइस अगर ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें देयर इज़ नो हार्म। व्हीट है, अब मैदा तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अभी वंस इन Hmm. अ ब्लू मून क्रेविंग हो रही है ये पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, बट दैट हैव टू बी इन वेरी मॉडरेट। तो उसको भी ज़्यादा नहीं। दिस इज़ फॉर नॉन सीलिएक। जो सीलिएक है उसके लिए नहीं बोल रहा। Yes. बोल। अच्छे से समरी कर दी है इन्होंने। हम्म, लाइक वही है दैट यू शुड, इफ यू ऑन सीलिएक तो प्लीज स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कीजिए। और टाइप 1 डायबिटीज जब डिटेक्ट की जाती है उसी टाइम पे इसका टेस्ट होता ही होता है सीलिएक का। एंड सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर इट। श्योर दीपिका जी, करा लीजिए, अच्छा रहेगा। कुछ भी यस, दैट विल बी अ इंटरनल बेटर। डैमेज कुछ होगा तो एटलीस्ट विल गेट टू नो फॉर वंस। यस, हाँ भाई, इंडिया जीत एंड वी गया, वुड पहले लाइक जीत टू, गया। हाँ इंडिया जीत गया। और we'll request everyone to follow the Blue Circle Diabetes Foundation on Instagram, Twitter. We have a YouTube channel as well. Then Facebook पे भी अपना page है, LinkedIn पे भी है. Please follow to get more पिंकी updates जी, आप related घूमने कहाँ to. जा रहे हो? ये रोहन पूछ रहा है आपसे, कहाँ घूमने जा रहे हो आप? वो भी मैं अकेले? जा नहीं रही हूँ return. No, I'm काफी with my सारे family. घूम के आ गए हैं रोहन। अच्छा। I'm on the way back home. हाँ, संडे Actually, को I'm बैक in होगा Karjat. मगर मंडे से काम। Yes, I was in Karjat, to traveling back to Mumbai. ठीक है। एंड इज लाइक अगर किसी ने मिस कर दिया हो हमारा वर्कशॉप तो प्लीज गो अहेड एंड पुट योर क्वेश्चंस ऑन द एफबी ग्रुप। तो आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे उधर ही, अगर आपने मिस कर दिया है वर्कशॉप, बिकॉज दिस रिकॉर्डिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन द पेज। तो आपको कुछ भी डाउट है एनीथिंग, वी विल डेफिनेटली आंसर इट लेटर ऑन द पेज। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, रिपीटेडली देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर सकते हैं। यस। एंड देर आर डिफरेंट ग्रुप इन डिफरेंट सिटीज़। एंड आई एम श्योर कि आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ग्रुप में। और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। यू कैन आस्क और आस्क एंड शेयर योर डिटेल्स। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो फील फ्री टू ज्वाइन दैट। 100 किलोमीटर्स वॉक, नाइस रोहन जी, बहुत अच्छा था। अभी तो बेस्ट टाइम है, इट्स रेनिंग एंड ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड। दीपिका जी, टेस्ट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो ऐसा कुछ है नहीं जहाँ तक मैंने जाना है। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से बात किया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप लैक्टोज का कंजम्पशन को रोक के देखिए कि अगर प्रॉब्लम्स है तो वो कम हो रही है या ख़त्म हो रही है थोड़े दिनों के लिए।
अगर ख़त्म हो रही है, तो फिर आप लैक्टोज़ को वापस से इंट्रोड्यूस करके देखिए कि वो प्रॉब्लम्स वापस आ रही है। तब इसका मतलब ये है, अगर वो प्रॉब्लम्स वापस आ रही हैं, तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है। और अगर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ टेम्परेरी इश्यूज़ थे, व्हिच इज़ नाउ फिक्स्ड। I think we'll end the workshop now. फिर तो पनीर अच्छा, लैक्टोज़ के लिए गुड क्वेश्चन। सो बिफोर वी एंड, देखिए लैक्टोज़ इंटॉलरेंट में पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, घी वगैरह में भी लैक्टोज़ नहीं होता है, जो कि दूध से ही बनता है, और छाछ वगैरह ये सब में नहीं होता है लैक्टोज़। But that is all made of milk only. Made of milk, but they are lactose free. Curd is Okay. lactose free, पनीर इज़ lactose free, छाछ वगैरह Okay. सब उसी से बनते हैं, वो भी लैक्टोज़ फ्री है। आपका घी, बटर ये सब भी लैक्टोज़ फ्री है। Okay. That is all fine, yes, that's also lactose free। Yes. और बाज़ार में लैक्टोज़ फ्री मिल्क भी अवेलेबल है, टी, कॉफ़ी या रॉ पीने के लिए भी। लाइक अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अ, अमूल अमूल का एक आता है लैक्टोज़ फ्री, 25-30 टाइप की पैकेट आता है, 250 ml का, एंड आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अमूल इज एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है, और साथ में कॉस्ट वाइज भी इट इज़ गुड। मार्केट में और भी बहुत सारे अवेलेबल है, सोए मिल्क, ये मिल्क, काफ़ी सारे हैं ऑप्शन, जो सूट करता है वो चूज़ कर सकते हैं। पनीर अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, पनीर इज़ लैक्टोज फ्री। टोफू इज़ ऑल्सो फाइन, राइट? यू राइट दिव्या जी। I think that comes to an end of our workshop. या, थैंक Um, यू, थैंक्स एवरीवन फॉर Thank जॉइनिंग। you कैन everyone वी for बॉयल joining. द लैक्टोज फ्री टेट्रा पैक मिल्क? यस दीपिका जी, वी कैन डू दैट। Okay. Deepika ji had the question. या, Okay. Thank you वी everybody. कैन डू दैट। दीपिका जी, अगर Yeah. आप